received Padma Shri, and for that, Dr. Sonia Nityanand is the most deserving person here. Dr. Puri earlier, so many others. Now, I'm not going to teach you anything. What is that at least I think that I have left the chance to you. So you are teaching and so on. But one small thing I remember, that the beauty of medicine is analysis and artificial intelligence and so on and so on. But the real beauty lies in learning from. Congratulations to Dr. Sonia ji for getting that prestigious award. Awards are given, alright, but they are also fetched. They are fetched on 4 pillars: a sound scientific knowledge, excellent technical skill, good human understanding, and excellent social engineering. First of all, once again, congratulations to Sonia Nityanand for having this very prestigious Padma Shri award. Congratulations once again. I thank Teachers Association, Dr. K.K. Singh and his team to have invited me to be with you all during this function. Coming to this hall and coming to this institution is like a because the most important thing, you have to show it also what you are. This is also a time that you have to show what. If you don't try to keep it inside. Show it more. The more you show, the more people will recognize you. Otherwise, people will not recognize you. Thank you very much. You will not. If you have blessings of the people, you have everything. Always have a very good heart for your student. Very, very good heart for the student. And their blessings are immense. You cannot count down it. So these are few things which I have learned in my life. And the last time I just जिम्मेदारी रोज करते थे, वो क्यूमुलेट होकर एक बड़ी सफलता बन गई। और आखिरी लाइन के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ कि विलियम जन रैंड ने लिखा है कि डेस्टिनी इज नॉट ए मैटर ऑफ चांस. डेस्टिनी इज नॉट ए मैटर ऑफ चांस. It is a matter of choice. It is not a thing to be waited for. It is a thing to be achieved with hard work and dedication. And Dr. Sonia has proved this again. Thank you. Thank you so much, sir. Now I request respected Pradeep Tandon sir, please bless us with his words. I am very, very grateful to everyone that I got this opportunity. And Bhaskar, Dr. Puri, Dr. Tandon, I can see Dr. Diwakar is here, the deans and all the esteemed faculty members and the audience. I would like to begin by thanking all of you for holding this function to participate. Thank you very much. It's been beautifully organized. It's been very beautifully organized with a lot of detailing in it. So I am very touched by it, and I hold the memories very dear to my heart as long as I live. I'll begin. KGMU के प्रोफेसर डॉक्टर सोनिया नित्यानंद को हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है और आज हमारे साथ में हैं प्रोफेसर डॉक्टर सोनिया नित्यानंद. मैम, KGMU को और अपग्रेड करने के लिए आपका विजन क्या है? नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनिया नित्यानंद, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी. KGMU मेरा आलमा मैटर है. मैंने यहीं से अपनी MBBS करी है और MD भी करनी मेडिसिन. और KGMU लास्ट बहुत आगे बढ़ा है. मैं चाहती हूँ ये और भी ऊंचाइयों तक जाए.
पहला चीज़ है कि यहाँ का जो रिसर्च शोध है उसको मैं आगे बहुत आगे बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत पेशेंस है। आप जानते हैं लगभग 8 से 10 हज़ार की OPD देते हैं और हर किस्म के हर स्पेशलिटी के पेशेंट होते हैं। तो उनमें शोध करके हम लोग कुछ वर्ल्ड क्लास रिजल्ट्स शोध के दिखा सकते हैं। पहला मेरा विजन है इसका शोध आउटपुट बढ़ाना। मैंने ऑलरेडी इस बारी 10 करोड़ लगभग जो मिला है बजट, उसमें से ईयरमार्क करा हुआ है इंट्राम्यूरल रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए। हर फैकल्टी को मैं इनकरेज कर रही हूँ अपने एक्स्ट्राम्यूरल प्रोजेक्ट्स में, और हम लोग जो अपना बेसिक जो रिसर्च अपना जो रिसर्च यूनिट है उसको, उसमें जो एथिक्स कमेटी है वो पूरी डिजिटलाइज हो गई है। मोर देन 900 प्रोजेक्ट्स इस साल एथिक्स कमेटी में रिव्यू है। दूसरा विजन जो है कैमरे में 1% बैटरी आगे रही है, जो पेशेंट सर्विसेज हैं वो भी और ऊंची उठे। कैमरे के ऊपर उस डायरेक्शन में मैं ये अपना थैंक्स करना चाहूँगी, धन्यवाद देना चाहूँगी यूपी गवर्नमेंट को कि उन्होंने उनको 50 करोड़ से 300 करोड़ का इक्विपमेंट बजट दिया है, और इस साल KGMU बहुत हाई एंड इक्विपमेंट्स ले रहा है, जैसे एक और लीनियर एक्सीलरेटर, रोबोटिक सर्जरी का इक्विपमेंट, न्यूरो नेविगेशन का सिस्टम, हाई एंड सुपर माइक्रोस्कोप फॉर प्लास्टिक सर्जरी एट्सेट्रा, जिससे वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी से पेशेंट सर्विसेज और उच्च स्तर की दे सकें। मैम, ट्रॉमा सेंटर में मोस्टली ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट का अपना यूपी का पेशेंट आता है, तो क्या ट्रॉमा सेंटर को और अपग्रेड करने की ज़रूरत है? जी, ये भी एक प्रायोरिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन ऑफ KGMU। आपको बहुत प्रसन्नता होगी कि जो एग्जिस्टिंग ट्रॉमा सेंटर है लगभग 450 बेड्स का, आप जानते हैं वो पूरा भरा रहता है, बेड पाना बहुत मुश्किल होता है और हमें स्ट्रेचर्स पे भी पेशेंट ट्रीट करने पड़ते हैं। तो हम लोग ने प्रपोजल एक शासन को भेजा था एक एडिशनल 500 बेड ट्रॉमा सेंटर का, और वो कैबिनेट से अप्रूव हो गया है। तो उसके आने से वो एग्जिस्टिंग ट्रॉमा सेंटर के बगल में ही बनेगा, उसके आने से ट्रॉमा की सर्विसेज जो है वो और ऊंचे स्तर तक जाएंगी। मैम, आप एक महिला हैं, आने वाली और महिलाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर? आज आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि आज नेशनल वुमेन्स डे है, और हम जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अपना यूपी गवर्नमेंट महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए बहुत स्कीम्स लॉन्च करी हैं, और बहुत सेफ्टी के इश्यूज उन्होंने अडॉप्ट करे हैं। आज हम लोग के यहाँ भी एक लेक्चर था मिसेस बबीता सिंह का, IPS, ऑन विमेंस सेफ्टी इश्यूज। तो मेरा तो ये मैसेज रहेगा कि पूरा देश, पूरा प्रदेश विमेन एम्पावरमेंट की तरफ आगे बढ़ रहा है। हम लोग को, विमेन को भी अपने को सेल्फ एम्पावर करना है। हम लोग को ये मान के चलना है कि हम लोग उतना ही आउटपुट दे सकते हैं जितना कि एक हमारे मेल कोलीग दे सकते हैं। तो मेरा तो संदेश रहेगा कि विमेन को अपने को किसी मेल कोलीग से कम नहीं समझना है, सेल्फ एम्पावरमेंट। चलिए, थैंक यू मैम, और आपको पद